Good evening, students. In continuation of Fundamental of Computer Programming through Curious Infotech Solution. Yesterday, we already have understood the term algorithm, flowchart, tracing algorithm, tools to analysis program. Now, today in the day 2, we will understand basic structure of C program, tokens used in the program, basic input output statements. Let's get the more detail of our syllabus day 2, in which basic structure of C program, tokens used in the program, basic input output statement, data type and operators, category 1 only output type program, category 2 in which input output type program, then category 3 in which input calculate and output type program, and we will see the fundamental programming task through the example of algorithm, dry run, and the flowchart in the program. Let's understand the basic structure of C program. It is divided into these three important tasks or the section. One is the library section. It is a standard section. Later on, we will see the user-defined library section. Then second section is the main section, and third is the function body section. Now here we have very simple structure to get the idea of the three sections. The first is the standard library section, in which we have include stdio.h. Then main function section contain the two important term. First is the name of the function, and second is the body of your function. Okay. Now here I am using the name of function with the two important term. First is name, and this bracket show the function. The name is a function, and this function return the type, that is integer type return. Clear? And then we have function body. In that function body, the opening curly bracket and closing curly bracket. So this opening represent the start of program. This closing represent the end of program. Now this open and close between, there are the space for writing a body of program. Okay, so I have written two statement. One is the display, the one is string. The string is the hello world, and we have also written 0. Okay. So here in this standard library section, that is include std.h. So this include is nothing but is a specific preprocessor command. Already processed. Preprocessor means already processed. It is sometimes known as a macro. Now this preprocessor command actually
effectively copies and pastes the entire text of files that is specified between the angle bracket known as that source code. So here we have stdio.h. So in that header file, the source code is there, and that completely copy and paste in this entire program. Okay. Now this file is nothing but is a standard file. Take a standard header file because .h is there, the header file is there, and that should come with the C compiler. So whenever we will install this C compiler, so automatically the all header files automatically downloaded and installed, and it is a short form as a input and output stream. Clear? Now this command contains the code for displaying and getting input from the user. Whenever we want to take input, so this header file is compulsory. Whenever display something on a screen, this header file is compulsory. Now in the main section. So in main section, the three important terms are there. Okay. First, that is the name of this function. Second, the return type. Clear? And third, this brackets. So these three important terms are there in the main section. So all starting point of C program is nothing but main function. तो जहां से भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो उसका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, मेन फंक्शन रहेगा. एंड आई ऑलवेज कॉल दिस मेन फंक्शन एज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फंक्शन बिकॉज this standard function does not want the header files. Now this function is called by the operating system. ठीक है, तो जैसे ही this function is called by the operating system when our program is executed by computer. तो जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम रन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन फंक्शन को कॉल कर देगा एंड वन बाय वन हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा. एंड फ्रॉम मेन फंक्शन द सब फंक्शन विल बी देयर, एंड फ्रॉम दैट सब फंक्शन अनदर सब फंक्शन बी देयर. तो दिस इज द ट्री स्ट्रक्चर. फ्रॉम मेन वी हैव another sub function, then another sub function, then another sub function. Now in between these two curly braces there is a block of code, and it actually telling the start of the program, and this your braces is specify the end of the program. Now in the body section, function के body section की बात करें तो here we have two statement. The first statement represent the print function, and this print function actually used to print character, string, float data type, integer data type, octal, hexadecimal value, whatever kind of data we want to print on a screen, so we will use this printf. Now the return keyword basically tell the program to return the value to this function main. Now here we are using the symbol semicolon. It is used to terminate the statement. So these three are very important note to understand the function body section. Now come to this token used in a program. So every program is actually use the smallest token. The all small tokens actually make our big program. तो here the text of C program, तो जो C program है वो text में return होता है, and this consist
द टोकन्स एंड वाइट स्पेस। हमने जो प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखा है उसमें बेसिकली दिस टोकन्स एंड वाइट स्पेस का एक इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके द्वारा ही हम अपनी इंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं। तो ए टोकन इज नथिंग बट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इट इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है ना, और ऑफ द सी प्रोग्राम एंड इट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। तो कंपाइलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। नाउ द सी पार्सर रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ टोकन। तो जब भी कंपाइलर रन होगा तो वो प्रोग्राम को पार्सिंग करेगा, पार्स करेगा, उसे एक एक वर्ड को चेक करेगा कि वो सही जगह है कि नहीं है। तो वो टोकन को ही एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड एक टोकन होता है, जैसे हम इंट लिखते हैं, फ्लोट लिख रहे हैं, केयर लिख रहे हैं, तो ये टोकन्स हैं। इसी तरीके से आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर जैसे हमारे पास सम है, एवरेज है, एरिया ऑफ सर्कल, ये आइडेंटिफायर्स हैं जिनको हम आइडेंटिटी बनाते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। जैसे सम निकालना है तो सम हमारे लिए एक आइडेंटिफायर हो गया, एवरेज निकालना है तो एवरेज एक आइडेंटिफायर हो गया, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो आइडेंटिफायर हो गया। ये कीवर्ड भी आइडेंटिफायर है, लेकिन कीवर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हो गए, तो ये स्टैंडर्ड कीवर्ड आइडेंटिफायर को कीवर्ड बोलते हैं। फिर न्यूमेरिक वैल्यू है, बूलियन, पॉइंटर लिटरल्स हैं, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर लिटरल्स हैं, यूजर डिफाइंड लिटरल्स होंगे। देन ऑपरेटर्स जैसे प्लस है, माइनस, दिस आर नोन एज ए लिटरल्स। एक एक सिंबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिटरल होते हैं, सबको मिला के ही प्रोग्राम बना सकते हैं। पंक्चुएटर्स जैसे कि आपके पास छोटे छोटे जो सिंबल्स आपके प्रोग्राम में यूज होते हैं तो ये कहलाएंगे पंक्चुएटर्स। ब्लैंक बहुत जगह यूज होता है, चाहे वो दो वर्ड को डिफरेंशिएट करता हो या अपने पास न्यू लाइन, तो दिस इज स्पेस। स्पेस भी यहाँ पर काउंट होता है, इसलिए इसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस टू अंडरस्टैंड दिस ऑल वर्ड्स। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टैब्स। तो टैब बटन हमारे पास है, हम वर्टिकल भी बढ़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बढ़ सकते हैं। न्यू लाइन, तो स्लैश एन इज नथिंग बट न्यू लाइन। देन कमेंट्स टू अंडरस्टैंड द our program specifically. तो here we have one comments like I am here, ठीक है। तो before this statement the bar and asterisk is there, and end of this statement bar and asterisk is there, ठीक है। Now come to the type of the keywords. तो keywords are nothing but predefined reserved word और रिजर्व आइडेंटिफायर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना आइडेंटिफायर, तो कीवर्ड एक आइडेंटिफायर ही है, ठीक है। एंड दैट हैव स्पेशल मीनिंग, इनका मीनिंग स्पेशल है, हम अपने कॉमन पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हम इन तरीके के कीवर्ड को वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि इनका मीनिंग पहले से ही यूज होता है। नाउ दिस कैन नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर इन ए प्रोग्राम। तो ये कैन नॉट बी यूज है ना, ये यूज नहीं हो सकते, कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। नाउ देयर आर 32 टोटल कीवर्ड्स used in the C program. Now for example keywords int है, float है, care है, if, else, for, while, this all called as our keywords. Identifier is nothing but is a sequence of character. So it is a sequence of character known as a identifier, and this denote the variable name. वेरिएबल नेम को ये डिनोट कर सकता है, जैसे AOC है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर इन तीन वर्ड को ज्वाइन करने के लिए अंडरस्कोर लगेगा। We can also denote the array name, structure name, union name। इन सबको डिनोट करने के लिए क्या लगेगा भाई,
आपको आइडेंटिफायर लगेगा। इन्यूमरेटर को भी डिनोट करने के लिए आइडेंटिफायर लगेगा। स्ट्रक्चर को, मेंबर को डिफाइन करना, यूनियन के मेंबर को, इन्यूमरेशन के मेंबर, इन सबको डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट, अवर आइडेंटिफायर। फंक्शन के मेंबर को भी डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट, योर आइडेंटिफायर। नाउ न्यूमरिक एंड बुलियन, इनको हम मतलब इन न्यूमरिक को दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होल नंबर से और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से। होल नंबर मतलब जिसमें हमारा कंप्लीट नंबर होगा, जैसे 25 है। 25 इज नॉट अप्रॉक्स नंबर, इट इज ए होल नंबर। तो होल नंबर में डेसिमल पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इट इज ए कंप्लीट नंबर, नो फ्रैक्शनल पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट इन द इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट में एक्सपोनेंट पार्ट रहेगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। तो दिस इज ए अप्रॉक्सीमेट ऑफ द नंबर, दैट्स व्हाई नोन एज ए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। बूलियन एक ऐसा रिजर्व वर्ड है जो कि आपके ट्रू और फॉल्स यानी दो लिटरल को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। 1 is the true and 0 is the false. Now string and constant character literal, तो देखिए character literal यानी क्या होगा, it is a composed of constant character, a constant character, ठीक है। तो in this एक character means it is a example of, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, a लिया है, x लिया है, एक स्टैंडर्ड सिंबल लिया @, फिर एक यहाँ पर प्लस लिया है। नाउ दिस इज द वन एम्प्टी कैरेक्टर, तो दिस इज द वर्ड हाउ टू यूज दिस कैरेक्टर, ठीक है। इसको एक बार आप रन करके देखिए कैसे रन होता है कि नहीं होता है। देन एस्केप सीक्वेंस मीन्स जैसे मुझे ये वेलकम को प्रिंट करना है, तो वेलकम के साथ मुझे डबल कोट भी लेना है, पर डबल कोट एक अपने आप में रिजर्व सिंबल है, तो उसके लिए वी विल यूज दिस एस्केप सीक्वेंस। तो इन दिस एस्केप सीक्वेंस वी हैव ए दिस टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड सिंबल टू प्रिंट ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। तो N फॉर न्यू लाइन एंड T फॉर टैब्स, एंड इफ यू वांट दिस ऑल रिजर्व वर्ड हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये स्लैश, फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट द सम यस, है ना, मेरे को क्या प्रिंट करना है, देखो ध्यान से देखो, तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या प्रिंट करना चाहिए, है ना। तो लेट आई हैव ए दिस एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है, देखिए अभी आप, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है यस एंड नो। अब ये प्रिंट करना है यस एंड नो, तो इसके बीच में क्या है, स्लैश है, एंड दिस स्लैश इज ए स्टैंडर्ड कैरेक्टर, तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वी विल यूज लाइक डबल स्लैश, तो हम डबल स्लैश को यूज करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्चुअली रिक्वायरमेंट। नाउ this will use as a double quote, okay. In string is nothing but it is a sequence of character, it is a sequence of character known as a your string, and that together form a null terminated string। तो null terminated string मतलब हर एक जो string है वो terminate किससे हो रहा है, null से होता है, तो null represent basically your 0, ठीक है। तो दिस कैरेक्टर मस्ट बी इनक्लोज बिटवीन द डबल कोट, ये डबल कोट के अंदर ही होगा, तो दिस इज नोन एज ए स्ट्रिंग एंड दिस इज नोन एज ए कैरेक्टर, ठीक है। नाउ ऑपरेटर इन सी, अब हम देखते हैं कि सी में ऑपरेटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑपरेटर बेसिकली यूज टू मैनिपुलेट द डेटा एंड इट विल बी यूज विद द ऑपरेंड, ऑपरेंड के साथ में यूज होगा ये। तो ऑपरेंड मतलब क्या होगा, देखिए ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है।
तो क्या होता है, देखिए इसके अंदर में लेट आई हैव ए ऑपरेंड, है ना। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड 1 प्लस लेट ऑपरेंड 2, यानी मेरे को यूज करना है 10 प्लस 20। तो 10 क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड, एंड प्लस क्या है, ऑपरेटर, एंड 20 क्या है, सेकंड ऑपरेंड। तो ऑपरेंड के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, यानी 10 एंड 20 के ऊपर ऑपरेशन करना है, सो दैट यू विल गेट ए 30। तो दिस इज नोन एज ए ऑपरेटर। तो सी में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप। असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, रिलेशनशिप ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इज इक्वल टू को असाइनमेंट बोलेंगे, दैट इज a इज इक्वल टू 100। मैथमेटिकल ऑपरेटर, इट इज ए बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तीन चीजें याद रखिएगा, u b एंड t, है ना। u b एंड t, u मतलब यूनरी ऑपरेटर, b मतलब बाइनरी ऑपरेटर, एंड t मतलब टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर में क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर में वन ऑपरेंड एंड, है ना, वन ऑपरेंड एंड यूर वन ऑपरेटर, ठीक है। तो वन ऑपरेंड एंड वन ऑपरेटर। बाई, बाई का मतलब क्या हो गया, इट इज ए टू टू ऑपरेंड एंड वन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी। एंड टर्नरी का मतलब क्या हो गया, टू, थ्री ऑपरेंड एंड टू ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ऑपरेंड एंड एक ऑपरेंड, एक ऑपरेटर इन ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए मैंने यूज किया +10, तो दिस इज ए यूर यूनरी ऑपरेटर। -10, इट इज ए यूर यूनरी ऑपरेटर। देन 10 प्लस प्लस, इट इज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। माइनस माइनस, माइनस माइनस 10, इट इज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज द your binary operator. The binary operator is like that. Your binary operator means a plus b, जैसे 10 plus 20, it is a binary operator. तो दो ऑपरेंड के साथ एक लगता है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन, मॉडुलस, लाइक दैट। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वलेंट और नॉट इक्वलेंट। तो दिस इज सिंबल, है ना, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इसको ध्यान से देखिए। देन लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर एंड यूर व्हाट, नॉट ऑपरेटर। तो ये आपके तीन जो लॉजिकल गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसी को हम बोलेंगे। कॉमा ऑपरेटर, इट इज ए पंचुएटर, ये कॉमा मतलब दो चीजों को सेपरेट आउट करेगा। देन टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें दो ऑपरेंड होंगे और तीन ऑपरेंड होंगे और दो ऑपरेटर होंगे। तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेटर। अब हम देखेंगे प्रीसीडेंस एंड एसोटिविटी। प्रीसीडेंस का मतलब होता है इट स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मीन्स इन द एक्सप्रेशन दैट कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर। जब एक से ज्यादा ऑपरेटर होंगे तो ये पता चलना चाहिए कि पहले कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑपरेटर है, लेट 10 प्लस 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। तो सपोज करिए ये आपके पास कंसेप्ट है, 10 प्लस 2 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, 10 प्लस 2। अब इसमें प्लस पहले ऑपरेट होगा कि मल्टीप्लाई पहले ऑपरेट होगा। तो अगर हम मैथमेटिक्स से देखें तो मल्टीप्लाई पहले ऑपरेट होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्लस दैट इज 60, 10 प्लस 60 हो गया। अब इसके बाद प्लस ऑपरेट होगा तो इट विल बिकम एज ए 70। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या आंसर आता? तो इसका आंसर आता 10 प्लस 2 दैट इज द 20। तो 20 इंटू यूर 30, तो 20 इंटू 30, तो अब 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा? तो इट विल बिकम एज ए 600। तो ये इसका डाइवर्जेंस मिल सकता है। तो प्रेसिडेंस से ये पता चलता है कि हमें कौन सी चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो इट इज ए यूर करेक्ट एंड इट इज द यूर रॉन्ग। तो ये रॉन्ग है ना, इट इज ए रॉन्ग। ठीक है। नाउ एसोसिएटिविटी क्या होगा? एसोसिएटिविटी ये है कि अगर दो लेवल के ऑपरेटर एक साथ आ जाए तो उस केस में लेफ्ट टू राइट होगा कि राइट टू लेफ्ट होगा। तो it specify whether an expression that contain multiple operators with the same precedence, then what will do, the operand is grouped with the one of its left or one of its right। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, क्या हो सकता है? देखिए मैंने किया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड सपोज 2, ये मैंने किया। अब इसमें 5 के साथ में पहले काम होगा कि 4 इंटू 5 होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं, देखिए है ना, तो लेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 4 इंटू 5 हो गया 20 एंड डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो गया 10। एक तो आंसर ये आ गया। ठीक है, एक आंसर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको 5 को पहले से 2 से कर दूं तो क्या आंसर आएगा? अगर 5 को से 2 से करूं तो पहली बात ये है कि ये आपका इंटीजर को लेगा, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 2 है ना। 4 इंटू 2 रह गया। ये क्यों रह गया? क्योंकि इसको हमने डिवाइड कर दिया है इससे। कहाँ गया हमारा? चलो, यस, तो लाइक दिस। तो यहाँ पर हम इसको लेके आ गए हैं। तो नाउ इट इज बिकम एज 6। तो अब जब दोनों ही इसमें है तो हमें ये ध्यान रखना है 6 नहीं आएगा हमारे इसमें, कितना आएगा? 10 आएगा। तो दिस इज द यूर अप्रोच कि हाउ यू आर मेकिंग दिस एसोसिएटिविटी। तो इट इज ए रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू दी यूर प्रेसिडेंस। अब देखिए वही चीज मैं आपको बता रहा था कि 10 प्लस 2 इंटू 30, तो यहाँ पर आपका लोअर प्रेसिडेंस है और ये आपका हायर प्रेसिडेंस है। तो हायर प्रेसिडेंस में पहले काम होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 30 दैट विल बिकम एज ए 60, और 60 को 10 से आप प्लस करेंगे तो इट विल बिकम एज ए 70। ओके, नाउ द एसोसिएटिविटी, दिस इज द यूर हायर एसोसिएटिविटी, इट इज ए लोअर एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बोथ हैव ए सेम प्रेसिडेंस बट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी लगेगा। यहाँ राइट टू लेफ्ट नहीं लेके चलना है। तो लाइक दैट 100 by 10 you will get 10 and 10 multiplied by 10 you will get a 100। ठीक है, now come to the your punctuation। तो punctuator nothing but have a synthetic and the semantic meaning to compiler but do not of themselves specify operator that yield a value। तो यहाँ पे कोई उससे अलग से कोई वैल्यू नहीं निकल के आना है, पर उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है ना, तो सम पंक्चुएटर आइदर अलोन और इन द कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी द सी ऑपरेटर और बीइंग सिग्निफिकेंट टू द प्री प्रोसेसर। तो कुछ कुछ चीजें जैसे मल्टीप्लाई है तो इनका स्पेसिफिक ऑपरेटर भी बन सकता है। ठीक है ना, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि जिस प्रकार से सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स के नाम क्या है? एक्सप्लेनेशन, परसेंटेज, then caret, then and, then asterisk, then left, right, and a minus, plus is equal to curly brackets and tilde and single apostrophe है ना, और the single quote, double quote। तो इस प्रकार से हर एक सिंबल का एक एक मीनिंग होगा। नाउ डेटा इनपुट एंड आउटपुट। अब हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो वी हैव ए फॉर्मेटेड फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन। तो फॉर्मेटेड फंक्शन क्या होगा? इन फॉर्मेटेड फंक्शन
वी हैव ए इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट में स्कैनएफ एंड आउटपुट फंक्शन में प्रिंटएफ होगा। नाउ अनफॉर्मेटेड में क्या है, इनपुट फंक्शन में गेट ch ई मतलब इको, एंड गेट कैरेक्टर एंड गेटस मतलब आपको एक स्ट्रिंग को रीड करना है ना। आउटपुट फंक्शन पुट केयर सिंगल कैरेक्टर, पुट केयर सिंगल कैरेक्टर, पुट एस विच इज ए स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए पुट एस, गेट एस एंड पुट एस। नाउ कम टू दी अवर एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है प्रिंट एफ के साथ, तो ओनली आउटपुट स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, इसमें इनपुट नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखें दे आर द थ्री कैटेगरी। कैटेगरी वन, ये कैटेगरी वन की बात हो रही है जिसमें आउटपुट आ रहा है। नाउ इन दिस आउटपुट देयर आर द 5 आउटपुट, but as we are observing in the output screen, there we are not getting a segment between the one output to another output. Jैसे for example A and welcome, no space is there. तो it is somewhat puzzle to understand or readable कि भाई क्या चीज हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हियर आई एम प्रेजेंटिंग कि हाउ वी कैन प्रेजेंट ए को देखो सिंगल है, मैंने डबल कोट से किया, वेलकम है, मैंने एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले किया, मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर दिया, मैंने एड्रेस को डिस्प्ले कर दिया। तो लाइकवाइज यू कैन डिस्प्ले द यूर डेटा एज ए इंफॉर्मेशन। तो ये जो दिख रहा है आपको ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके अंदर जो है वो डेटा ही है। हम डेटा को प्रोसेस करके जो आउटपुट लाते हैं दैट इज नोन एज ए इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ लेट इफ यू विल यूज द एस्केप सीक्वेंस /n हमने लिया है, तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमें जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिसाइजली मिल रही है। हम उसको समझ सकते हैं कि भाई ए है कुछ, एक आपके पास में आउटपुट है, वेलकम एक आउटपुट है, माय नेम आउटपुट है, एक ये लंबा सा आपके 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हैं, एड्रेस, मतलब बाय दिस डेटा वी कैन गेट ए मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। Now come to the second category in which we have your this calculation as well as the output। देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक 10 है और यहाँ पर हमने क्या किया है, you are displaying this output in which getting the variable 10। इसी तरह पाई फ्लोट ले लिया है, फ्लोट में %f %d यहाँ पर लेना, %f यहाँ पर लेना है। इस तरीके से आउटपुट निकालेंगे तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 एंड 00 ये आपके एडिशनल ये इसमें आ जाता है। इसको भी हमें हटाना है तो वी कैन डू द फॉर्मेट पे और एक फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, सो दैट वी शुड गेट ए वैल्यू 3.14। अगर हमें कैरेक्टर लेना है तो हम CHER लेंगे डेटा टाइप और यहाँ %C लेंगे। तो लाइकवाइज यू कैन डू द यूर इनपुट ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन भी हो रहा है और आउटपुट आ रहा है, तो C इज इक्वल टू 10 + 20 है ना। तो ये 10 + 20 को हमने यहाँ पर लिख दिया और C इज इक्वल टू %D, तो हमें आंसर मिला C इज इक्वल टू 30। इसी तरीके से C इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7, तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो वी विल गेट ए कंप्लीट यूर पाई की वैल्यू 3.142857। इसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का यूज करके आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पर 10 + 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2, तो सबसे पहले क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर आपका 100 हो गया। 100 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 2 से, तो 50 मिला, तो 50 + 10 कितना हुआ, दैट इज 60, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, छोटा प्रोग्राम है, ज्यादा आप इसमें और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जितना क्लियर दिख रहा है आप उतना समझेंगे भी तो काफी है। लास्ट स्लाइड है आज की, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनपुट कैटेगरी 3, इनपुट भी है, कैलकुलेशन भी है, आउटपुट भी है। तो देखिए एडिशन ऑफ 2 नंबर है, तो इसमें हमने एक डेटा टाइप लिया है, जितने भी अननोन्स है उन्हें डिक्लेयर किया है, फिर स्कैनएफ में हमने 2 इनपुट लिए हैं, फिर कैलकुलेशन बनाया है और आउटपुट कर दिया है।
तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम में 10, 20 या c इज इक्वल टू 30 दिख रहा है। पर ये जो हमें स्क्रीन दिख रही है डिस्प्ले वाली, वो अप्रिशिएबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक मैसेज बनाना चाहिए, दैट इज इंटर ए एंड बी। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज बना दिया। सेकेंड प्रोग्राम में आप ध्यान से देखें तो यू विल गेट ए मैसेज ए एंड बी, और इसके बाद में यहाँ से हमको मिल रहा है ए और बी। तो ये मैं c इज इक्वल टू a प्लस बी निकाल के ला रहा हूँ। तो आई एम गेटिंग ए वन ब्यूटीफुल मैसेज कि इंटर a एंड b 10 and 20 एंड दिस विल बी c इज इक्वल टू 30। ठीक है। नाउ द लास्ट प्रोग्राम ऑफ द D2 कि यहाँ पे हमने थोड़ा और इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पर इंटर ए की वैल्यू का डिस्प्ले दिया है और यहाँ पर आउटपुट लेके आए। तो लाइकवाइज इफ यू विल थिंक कि हाउ यू आर मेकिंग ए स्मार्ट प्रोग्राम, तो ये धीरे 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 आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ती जाएगी और आप बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम बनाते जाएंगे। तो होप आपने Day 2 का भी बहुत अच्छे से समझा है। नाउ वी विल सी द मोर एंड मोर इन द कमिंग डेज। थैंक यू टू ऑल।